ہمسایوں کے ساتھ امن کا خواہشمند، ملک کی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی سے متعلق اجلاس کے شرکاء کا عزم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بھی شرکت۔ فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان بھی اجلاس میں شریک۔ مقبوضہ وادی کی صورتحال کا سخت نوٹس۔ گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق بھارتی بیانات کشمیریوں پر مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ مقبوضہ وادی کو کھلی جیل بنانے والوں کے پاس تبصروں کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ نہتے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا افسوس کا اظہار۔ اٹک میں بھی افسوسناک واقعہ، کنویں کی صفائی کرتے زہریلی گیس بھر گئی، 6 مزدور جاں بحق، امدادی کارروائیاں جاری۔ ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات مکمل، جج ارشد ملک نوکری سے فارغ۔ برطرفی کا فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے سنایا۔ برطرف جج نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی۔ جج ارشد ملک کی برطرفی کا فیصلہ سچ کی فتح، عدل و انصاف کے دامن پر لگا داغ صاف ہو گیا۔ احتساب عدالت کے سابق جج کے فیصلے بھی کالعدم قرار دیے جائیں۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی ₹2.89 فی یونٹ مہنگی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2016 سے 2019 تک سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی سمری منظور کر لی۔ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں احساس پروگرام کے لیے مزید 29 ارب 72 کروڑ روپے مختص۔ کورونا کے وار برقرار، وائرس مزید 78 جانیں لے گیا۔ ملک بھر میں 2,21,896 مریض، سندھ میں 89,225، پنجاب میں 78,956 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 27,170 اور بلوچستان میں 10,666 کیس۔ کراچی کی 39 UCs میں سمارٹ لاک ڈاؤن ختم۔ ضلع غربی اور جنوبی کے مخصوص علاقوں میں پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 17 جولائی تک شہریوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت۔ میڈیکل سٹورز، کریانہ اور دودھ کی دکانیں اوپن رہیں گی۔ سندھ میں کورونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ، تناسب 46% ہے۔ تحریک انصاف کی ناکامی کی وجہ سے سندھ کو 229 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ معیشت کی سست رفتاری کے باوجود ریونیو میں 5% اضافہ ہوا، بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ صرف ایک اس وقت علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ سندھ ہے، خصوصی طور پہ کراچی ہے۔ آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر اظہر پیچیو کے ساتھ۔ انہوں نے بھی، ان کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کام کرنا چاہیے، ہمارے ذہن میں بھی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں کورونا کی صورتحال بہتر نہیں، صوبوں کو ہاٹ اسپاٹ ایریاز کی نشاندہی کی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن سے مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی۔ SOPs پر عمل درآمد سے وبا کا پھیلاؤ کم ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی بریفنگ۔ سندھ حکومت نے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی۔ ماسک، سینیٹائزر کا استعمال ضروری قرار۔ بسوں میں مسافروں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ۔ عزیر بلوچ، ڈاکٹر نثار مورائی اور بلدیہ ٹاؤن سانحہ کی تینوں GIT رپورٹس ہم پبلک کر رہے ہیں۔ جو ایک واویلا علی زیدی صاحب نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مچایا ہوا تھا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। सिंध हुकूमत का तीनों JITs की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान। उज़ैर बलोच की JIT में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का जिक्र नहीं। हुकूमत ने अभी तक कोई वादा वफा नहीं किया। बिलावल भुट्टो के असास से डिक्लेयर्ड, अली जैदी ने टैक्स नहीं दिया। मुर्तजा वहाब के इल्जामात। उज़ैर बलोच का 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़। तमाम अफराद को लिसानी और गैंग वॉर तनाज़े में मारा गया। असर और रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs भी तब्दील कराए। 2008 से 2013 के दौरान मुख्तलिफ हथियार खरीदने का भी इंकशाफ। मुल्जिम के मुल्क से फरार के बावजूद लाखों रुपए माहाना भत्ता दुबई भेजा जाता रहा। JIT रिपोर्ट दुनिया न्यूज़ पर। LNG ठेका करप्शन केस की समाअत। नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस के लिए फिर मोहलत मांग ली। इल्जामात बेबुनियाद। एहतसाब ब्यूरो सिर्फ सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। हाउसिंग सोसाइटी में अराजी की गैर कानूनी फरोख्त का मामला। ख्वाजा आसिफ की नैब पेशी। हुक्काम की 1.5 घंटा पूछगछ। लीगी रहनुमा पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इशारा। असद कैसर अब गैर जानिबदार नहीं रहे। पीपल्स पार्टी तहरीक लाई तो हिमायत करेंगे। राना सनाउल्ला। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तनकीद बराए तनकीद करने वाले पहले गिरेबान में झांकें। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम करप्शन ज़दा सियासतदानों को मुस्तरद कर चुके हैं। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। अपोजिशन अरकान असम्बली की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। नविश्ता दीवार, रही सही इज्जत बचानी है तो हिस्ब इख्तलाफ अपनी सफ़ों में नजर दौड़ाए। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब होगा। फयाजुल हसन चौहान। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 26 अरब मुख्तस किए। खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में स्प्रे और सर्वे का काम भी जारी है। वफाकी वजीर फखर इमाम की ब्रीफिंग। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में टिकेती के दौरान लड़की से ज्यादती। पुलिस ने 3 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। चौथे की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्जिमों के वरसा का लड़की के खानदान पर सुलह के लिए दबाव। सूरज कहर ढाने लगा। मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी। लाहौर में पारा 42 दर्जे तक पहुंच गया। दादू, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड। मानसून का पहला स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान। यहाँ पर पहुंचते ही बिजली बहरान। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। शहरी सरापा एहतजाज। किस तरीके से क्वारंटाइन में रह सकता है आप मुझे बताएं। इस हालत के अंदर आदमी क्वारंटाइन में रहेगा। डेली रात को 1 बजे से 4 बजे तक लाइट के जाने का एक शेड्यूल बन चुका है। अब दिन भर जब लाइट नहीं होती, मुझे ये KFC वालों से पूछ रहे हैं 13.5 घंटे मीटर बंद है, मगर अब जो बिल आएगा ना, आप वो देखिएगा कि वो आसमान से बातें करता हुआ आएगा। वैन लोड शेडिंग तो मार दिया इन्होंने हमारे को। बिल इतना ठोक कर आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। लाहौर में भी लोड शेडिंग अजाब। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। गढ़ी शाहू, ताजपुरा, चाइना स्कीम, जानीपुरा और शाहदरा ज्यादा मुतासर। शहरियों का पारा हाई।
बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की है, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास के शुरका ने इस अज़्म का इआदा किया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहिमी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। शुरका ने साथ साथ इस अज़्म का भी इजहार किया कि आवाम और मुल्की सरहदों की सलामती के लिए हम पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत के दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। शुरका की जानिब से ऐसा भी कहा गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। इस इजलास के शुरका ने यह मुतालबा किया, जबकि इजलास में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। आपको अपडेट करें कि वजीर आजम ने सी पैक अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आजम को सी पैक मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इक्तसादी राहदारी पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बेहतरीन मनसूबा है, वजीर आजम ने ऐसा कहा। साथ ही उनकी जानिब से कहा गया कि सी पैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने ये भी कहा कि सी पैक मनसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। इसके समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सी पैक अथॉरिटी की कारकर्दगी को भी सराहा। ये भी कहा कि सी पैक को मजीद मौसर बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम किए जाएं। सी पैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के गलत बयानात को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय बयानात कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकते। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से यह भी कहा गया कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर सबसे तवील हल तलब तनाज़ा है और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भारतीय बयानात कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पर्दापोशी नहीं कर सकते। सोपुर में भारतीय काबिज फोर्सेज ने 3 साला नवासे के सामने निहत्ते शहरी को कत्ल कर दिया। भारतीय हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि भारत तमाम मकबूजा इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹2.79 तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। एहसास